Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shahin and today I will tell you briefly about the very important book Heart Lamp, Selected Stories, and it is written by Banu Mustaq. So this book has got International Booker Prize this year 2025. This book is originally written in Kannada language and she wrote this book from 1990 to 2023. So this book is a collection of 12 short stories which explores the lives and status of Muslim women in southern India. Actually, the writer has focused on the themes of patriarchy, gender inequality, women's marginalized position and subjugation. The writer has actually exposed how Muslim women raise their voice against patriarchy, how they resist against cruelty in their family. Today, I will deal the first half of the story because the story is too long. So I will deal first half and in the next video I will deal the next half, then I will complete. And the title of the first story is Stone Slabs for Shaista Mahal. So I will tell you the narrator of the story. The narrator of the story is Jeenat and she is the wife of Mujahid. So Mujahid is the husband of Jeenat and Jeenat is the narrator. And Mujahid and Jeenat are newlyweds couple in this short story. So now I deal the story line by line. So this is the first story from Heartland, written by Banu Mustaq, which got the International Booker Prize. So the first story title is Stone Slabs for Shaista Mahal. So I explain line by line in English and in Hindi both. From the concrete jungle, from the flamboyant apartment buildings stacked like matchboxes to the sky, from the smoke spewing, horn blaring vehicles that were always moving day and night, as if constant movement was the only goal in life. Then from people with no love for one another, no mutual trust, no harmony, no smile of recognition. Even I had desperately wanted to be free from such a suffocating environment. So when Mujahid came with news of his transfer, I was very happy truly. So here the narrator and the narrator is here the wife of Mujahid and she is actually it is here talking about Mujahid's transfer and the narrator of this story is actually Jeenat. So Jeenat is here talking about the environment of the place where her husband was living and the environment of that place, how there was no attachment between people, no love, nothing, and that's why she is saying that only goal in life then from people with no love means there was no love with one another, no mutual trust, there was no trust, no harmony, no smile of recognition means the place where they were living, nothing, there was nothing love in that place. So actually she was talking about the suffocating environment of that place. So when she heard about the transfer of Mujahid and she was very happy. After I forgot, I should tell you about Mujahid. No, Mujahid is my home person. Oh, that sounds. A wife is usually the one who stays at home, so that makes her the home person. Perhaps then Mujahid is my office person. Chi. I have made a mistake again. The office is not mine after all. How else can I say this? If I use the term Yasmana and call him honor, then I will have to be a servant as if I am an animal or a dog. I am a little educated. I have earned a degree. I don't like establishing these honor and servant roles. So then I shall say Ganda for husband. मीन्स यहाँ पर जो है नरेटर वह
शी इज टॉकिंग अबाउट हर स्टेटस एज अ हाउस वाइफ, एज अ वुमेन, कि कैसे उनकी एक मुस्लिम फैमिली में उनका क्या स्टेटस उसे समझा जाता है, उस बारे में नरेटर यहाँ हम लोग को बता रही है कि कैसे उसका जो हस्बैंड है जीनत की, उसका हस्बैंड मुजाहिद है, वह उसके बारे में कह रही है कि कैसे उसे एक सेकेंडरी स्टेटस देता था, उसे मार्जिनलाइज करके फैमिली में रखता था, और एक ऑनर सर्वेंट का एक तरह से रिलेशन था, वो उसको बता रही है कि दैट्स वाई शी इज टेलिंग इफ आई यूज टर्म यासमाना एंड कॉल हिम द ऑनर देन आई विल हैव टू बी अ सर्वेंट। यानी कि वह कह रही है कि हमें यहाँ पर एक ऑनर और सर्वेंट का रिलेशन था, एज इफ आई एम एनिमल और अ डॉग, यानी कि उसको एक तरह से ऑनर और एनिमल और डॉग की तरह वो घर में फील करती थी। अब वो अपनी एजुकेशन की भी बात बता रही है नरेटर जो है वो जीनत। शी इज टेलिंग दैट आई एम अ लिटिल एजुकेटेड, आई हैव अर्न अ डिग्री और आई डोंट लाइक एस्टेब्लिशिंग दिस ऑनर एंड सर्वेंट रोल्स। यानी कि वह एक जो पेट्रियार्कल फैमिली में जो होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें हस्बैंड को प्राइमरी स्टेटस दिया जाता है और वाइफ को सेकेंडरी, तो वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करती है। वह कह रही आई डोंट लाइक एस्टेब्लिशिंग दिस ऑनर एंड सर्वेंट, यानी कि वह ऑनर, अपने हस्बैंड को ऑनर और अपने आप को सर्वेंट का रोल देना नहीं चाहती है, क्योंकि शी इज टेलिंग आई हैव अर्न अ डिग्री, वह पढ़ी लिखी है। सो देन शैल आई से गैंडा फॉर हस्बैंड, दैट ऑल्सो इज टू हैवी अ वर्ड एज इफ है गैंडेट्रा अ बिग डिसेस्टर अवेट्स मी, but why go into all this trouble? You could suggest that I use the nice word पति। तो वो कहती है कि अब पति वर्ड, क्या मुझे पति पति वर्ड यूज करना चाहिए फॉर हस्बैंड? देन अगेन नो woman who comes to your house introduces her husband saying this is my pati, right? So this word is not very popular colloquially, सो इट इज़ अ वेरी बुकिश वर्ड। मतलब वो बोलती है कि यह सब जो है वह बुकिश वर्ड लगता है, पति कहना, दिस इज माई पति। सो इफ वन यूजेस द वर्ड पति, देयर कम्स एन अर्ज टू एड देवरू टू इट, अ कॉमन प्रैक्टिस इक्वेटिंग वंस हस्बैंड विथ गॉड। यानी कि वह देवरू वर्ड, वह बोलती है कि एक देवरू वर्ड यूज किया जाता है यूजुअली पति के लिए, जिसमें क्या होता है हस्बैंड को गॉड के साथ इक्वेट करना, यानी कि गॉड और हस्बैंड को इक्वल स्टेटस दे देना, जो कि जो नरेटर होती है इस शॉर्ट स्टोरी को वो पसंद नहीं करती है। आई एम नॉट विलिंग टू गिव मुजाहिद सच एलिवेटेड स्टेटस। अब वह कहती है कि जो नरेटर है जीनत, वह कहती है कि आई एम नॉट विलिंग टू गिव मुजाहिद सच एलिवेटेड स्टेटस, यानी कि वह इस तरह का स्टेटस, यानी कि जो गॉड का होता है उस तरह का दर्जा मैं अपने हस्बैंड को नहीं दे सकती, इस तरह का स्टेटस। कम टू थिंक फॉर अस, दैट इज फॉर अस मुस्लिम्स, इट इज सेड दैट अदर देन अल्लाह एवं आवर पति इज गॉड ऑन अर्थ। यानी कि वह कहती है कम टू थिंक ऑफ इट फॉर अस, दैट इज फॉर अस मुस्लिम्स, इट इज सेड दैट, मतलब मुस्लिम्स में एक मतलब एक कंसेप्शन लोग बना दिए हैं कि हाँ कि अदर देन अल्लाह, अल्लाह के अगर बात कोई है तो आर पति इज गॉड ऑन अर्थ, यानी कि इस दुनिया में कोई अगर गॉड है अल्लाह के बाद तो वह पति है। ऐसा एक कंसेप्शन बना दिया गया है मुस्लिम रिलीजन में, जो कि वो बता रही है इस शॉर्ट स्टोरी में narrator. Suppose there comes a situation where the husband's body is full of sores, with pus and blood oozing out from them. It is said that even if the wife uses her tongue to lick these wounds clean, she will still not be able to completely repair the debt she owes him. यानी कि वो मतलब बताती है कि किस तरह से उसके हस्बैंड को अगर कुछ हो जाता है तो वाइफ किस तरह से मतलब कोऑपरेट करती है, कितना उसके दुख दर्द में साथ देती है, किस तरह से मतलब एक तरह का शी विल स्टिल नॉट बी एबल टू कम्प्लीटली रिपे द डेट शी ओज हिम। यानी कि एक तरह से वो कितना भी कुछ कर दे या लेकिन एक तरह से क्या है वह एक कर्जदार बनी रहती है, राइट। मतलब वो कभी इतना मतलब हाइयर पावर दिया गया है, हाइयर स्टेटस हस्बैंड को, कि वाइफ मतलब कितना भी कुछ अच्छाई कर दे लेकिन वह चुका नहीं सकती है इस चीज़ को, राइट। सो शी इज टॉकिंग अबाउट दैट if he is a drunkard or a womanizer, or if he harasses her for dowry every day, even if all these ifs are true, he is still the husband. No matter which religion one belongs to, it is accepted that the wife is the husband's most obedient servant,
हिज बॉन्डेड लेबर। मतलब ये अप टू द पॉइंट यहाँ पर जो राइटर है उसने लिखी है कि कैसे नरेटर बता रही है जीनत कि इफ़ ही इज़ अ ड्रंकार्ड, यानी कि अगर उसका पति, उसका हस्बैंड अगर ड्रंकार्ड भी है, एक वुमेनाइजर भी है, यानी औरतों को छेड़ता भी है, और इफ़ ही हैरासेस हर फॉर डॉरी एवरी, अपनी वाइफ को अगर डॉरी के लिए रेगुलर वो हैरास भी करता है, परेशान भी करता है, इवन इफ ऑल दिस इफ्स आर ट्रू, लेकिन यह सब जायज़ है उसके लिए, ही इज़ स्टिल द हस्बैंड, क्योंकि वह एक हस्बैंड है। नो मैटर विच रिलीजन वन बिलोंग्स टू, यह मैटर नहीं करता है कि वह किस धर्म से बिलोंग करता है। इट इज़ एक्सेप्टेड दैट वाइफ इज़ द हस्बैंड्स मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात उसने लिखी है कि वाइफ इज़ द हस्बैंड्स मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, यानी कि जो वाइफ है हस्बैंड के लिए वह बहुत ही सबसे बड़ा आज्ञाकारी नौकर है, उसका एक बॉन्डेड लेबरर है। यानी कि बॉन्डेड लेबरर यू कैन अंडरस्टैंड, यानी कि एक बंधा हुआ लेबर होता है जो कि उसको हर काम करना पड़ता है, वह छोड़ नहीं सकता वो लेबर अपने मालिक को। सो दिस इज द थिंग शी इज टॉकिंग अबाउट हियर। By now, you must have understood what my relationship with Mujahid is. At the same time, you must have understood what I think about ऑल दिस, यानी कि अब आप बता रही है नरेटर कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि मेरा रिलेशन मुजाहिद से क्या था, यानी कि इससे साफ जाहिर है कि मुजाहिद उसका हस्बैंड था नरेटर का, और जो नरेटर है वह जीनत है, वह बता रही है। आपको आगे जीनत के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा पढ़ने को, यहाँ तक राइटर ने डिस्क्लोज अभी नहीं किया है उसका नाम, लेकिन आई हैव रेड द स्टोरी थॉरो, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू अबाउट द नरेटर। It is not my mistake when Mujahid, that is my life companion, got transferred. We moved into beautiful quarters at कृष्ण राजा सागरा डैम प्रोजेक्ट, यानी कि जब उसके हस्बैंड को ट्रांसफ़र हो गया तो वह उन लोगों ने एक क्वार्टर में शिफ्ट किया जो जगह का नाम है कृष्ण राजा सागरा डैम। He then left me with the jackfruit, lemon trees, dahlia, jasmine, chrysanthemum, rose plants in the front yard, and the curry leaves, bean plants and bitter gourd creepers growing in the back. So यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उस जगह का दिया गया है कि जहाँ पर वो लोग अब केस जगह जो है वहाँ पर शिफ्ट होते हैं, वहाँ का डिस्क्रिप्शन वो नरेटर हम लोग को बता रही है। He on the other hand was occupied for 28 out of 24 hours every day, either working at the office or doing research at Karnataka Engineering रिसर्च स्टेशन, यानी कि वहाँ पर जो काम कर रहा है उसका हस्बैंड कर्नाटका इंजीनियरिंग रिसर्च स्टेशन पे, उसकी वह बात कर रही है यहाँ पर नरेटर। इट इज़ द सेम नाउ टू, अ कूल ब्रीज इज टिकलिंग माई बॉडी एंड माइंड since I don't have anyone to talk to, I am sitting here in the middle of the garden and ranting about this so called husband to you all. यानी कि वह बता रही है वहाँ कैसे जो कूल ब्रीज है उसके कैसे बॉडी और माइंड को टिकल कर रहा है, छू रहा है, वहाँ पर बैठी हुई है, एंड रेंटिंग अबाउट दिस सो कॉल्ड टू यू ऑल हस्बैंड। बट अरे व्हाट इज दिस, यह क्या है? मुजाहिद स्कूटर, यानी उसका हस्बैंड का स्कूटर। दैट टू एट दिस टाइम ऑफ डे I looked at the clock. It was only 5 o'clock. I raised my eyebrows. I didn't move from seat. Mujahid flashed his teeth. I impressed mine tightly behind my lips. He bowed down, placed the helmet on my head, pulled me off the hand and said, quickly, I will give you 8 minutes. You have to get ready by then. कम आउट इफ़ यू डोंट, यानी वो वहाँ पर उसको बोलता है कैसे कि मुजाहिद अब यहाँ पर जो है यह बता रही है कि कैसे शाम सुबह की 5 o'clock का टाइम था और उसका हस्बैंड स्कूटर निकालता है और उसको बोलता है साथ में चलने के लिए। आई विल गिव यू 8 minutes, 8 मिनट का टाइम देता हूँ। अपनी वाइफ को बोलता है जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट रेडी एंड देन कम आउट इफ़ यू डोंट, अगर नहीं आते हो तो मतलब उसे कहने का मतलब है कि मतलब वो उसको मतलब रूडली ट्रीट कर रहा है वहाँ पर कि आना है तो आ जाओ, नहीं तो मत आओ, इस तरह की ट्रीटमेंट है। Hold on a time, let me tell you the whole story. We are newly married. If I have to be specific, we have been married for 10 months and 13 days. यानी कि यहाँ पर अब क्लियरली बता रही है नरेटर कि उसकी शादी जो है वह 10 months पहले और 10 months और 13 days हुए हैं, यानी 1 साल भी नहीं हुए हैं, और ये लोग जो है वह न्यूली वेड्स हैं, अभी नई नई इनकी शादी हुई है। यानी कि जो नरेटर है वह बता रही है कि उसकी शादी के अभी 10 months और 13 days ही हुए हैं।
और मुजाहिद हैज़ ट्राइड अ फ्यू gimmicks before this. One day, he tried very hard and braided my hair, sticking 118 pins into my head to hold it up. Satisfied that it looked very good, he even took a photo. I looked like a monkey. Another day, he tried to get me to wear trousers, but even his loosest pair burst out of their seams and he had to give up trying. यानी वो यहाँ पर थोड़ी सी जोकिंग की भी बात कर रही है कि कभी उसका हस्बैंड क्या है कि ही ट्राइड हार्ड ब्रेडेड माई हेयर, उसकी चोटी को भी बांध दिया एक बार, मतलब खुशी में, कभी कभी खुशी फील भी करती थी। और कैसे वह फिर बता रही है कि वह उसकी चोटी को बांध दिया उसका हस्बैंड, लेकिन वह दिखती कैसे थी, वह मंकी की तरह दिख रही है। सो इट्स लाइक फन, शी इज टॉकिंग अबाउट हेयर एंड देन हेयर। Next, I get very irritated when other people smoke. So instead of blowing out the smoke, I held it in and acted like I couldn't stop coughing and that I was finding it hard to breathe. यानी कि वह अब बोलती है कि मतलब उसका हस्बैंड जो था थोड़ा सा अपने आप को अपर लेवल क्लास के जो होते हैं पीपल, उनके तरह ट्रीट अपने आप को करता था और चाहता था कि उसकी वाइफ भी उसी तरह का दिखावा करे, जबकि वैसा फैमिली से वो लोग नहीं भी थे। यानी कि वो चाहता था कि हम स्मोक करें, हमारी वाइफ भी करे, राइट। तो इस तरह से वह बता रही है यहाँ पर कि आई गेट वेरी इरिटेटेड। वो लेकिन जो जीनत है वो पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बोलता था सिगरेट पीने के लिए, तो वो उस टाइम क्या करती थी, वह एक्ट करती थी, यानी कि प्रिटेंड करती थी। आई कुडंट स्टॉप कॉफिंग, वह जानबूझकर खांसी करने लगती थी, जोर जोर से सांस उसके चढ़ने लगती थी, इस तरह की एक्टिंग करने लगती थी ताकि उसका हस्बैंड उसको स्मोकिंग करने के लिए बोले ही नहीं थे। पुअर थिंग, ही वाज सो अपसेट। वह तो बोलती है कि उसका हस्बैंड इस बात पे अपसेट भी हो जाता था, गुस्सा भी हो जाता था। बट ऑल दिस डिजास्टर्स पास्ट विद इन 3 months, लेकिन यह जो था इस तरह की एक्टिंग वह 3 month तक इन लोगों की मतलब चली। शुरू में मतलब न्यूली वेड्स थे जब, तो उनके हस्बैंड कैसे ट्रीट करते थे, इस तरह की वो बातें कर रही है। सो 3 महीना के बाद अब क्या होता है वो आगे बता रही है। नाउ एंड वी आर वेरी नॉर्मल कपल नाउ, लेकिन अब ये दिखावा नहीं करते हैं, अब इनका रियल लाइफ जो है ये शुरू होता है। शी इज टेलिंग, नरेटर अब क्या बता रहा है कि इट ऑल द डिजास्टर्स पास्ट विद इन 3 months, 3 महीना में उनका जो भी था शो ऑफ सब खत्म हो गया। और उसके बाद वी आर वेरी नॉर्मल कपल नाउ, अब 3 महीना के बाद ये इनका असल रिलेशन शुरू हो गया। अब नॉर्मल कपल की तरह अब एक दूसरे को अब ट्रीट कर रहे हैं। कैन आई आस्क वेयर वी आर गोइंग, मतलब ये कह रही है स्टेटमेंट जीनत कि कैन आई आस्क वेयर वी आर गोइंग, अपने हस्बैंड से पूछ रही है कि क्या हम जान सकते हैं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तुम स्कूटर निकाल रहे हो और बोल रहे हो जाने के लिए, तो कहाँ जा रहे हैं ये। तो उसका हस्बैंड बोलता है येस यू कैन आस्क, देयर इज़ ए मैन कॉल्ड इफ्तिखार, एक आदमी है जिसका नाम है इफ्तिखार अहमद, एट बेलागोला फैक्ट्री। सो आई मेट हिम ओनली 8 days एगो, यानी कि इफ्तिखार यानी कि इसका हस्बैंड जो है मुजाहिद, वह अपनी वाइफ को बता रहा है कि 8 दिन पहले ही वह उससे मिला था इफ्तिखार से, जो बेलागोला फैक्ट्री पे है और उसी के यहाँ इनवाइट किया गया है मुजाहिद को, इसलिए मुजाहिद अपनी वाइफ जीनत को लेकर जा रहा है, वह जीनत को बता रहा है। आई डिडंट टेक मी even 8 minutes to come out. Silova rushed behind me and stood near the gate. He was happy when I told him don't cook anything for dinner, I will come back and cook myself. यानी कि जो सिलेवा था वो उसके यहाँ मतलब वो खाना भी बनाता था, तो उसके बारे में वो बोलती है कि डोंट कुक एनीथिंग, मतलब आज खाना मत बनाना, मैं आऊँगी तो वापस खाना बनाऊँगी, या जीनत बोलती है। इट सीम्ड लाइक मुजाहिद वॉज ऑल्सो इन ए गुड मूड दैट डे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि मुजाहिद उस दिन काफ़ी गुड मूड में था। ही रोड द स्कूटर वेरी स्लोली, वह बहुत स्लोली वैसे ही रोड द स्कूटर वेरी स्लोली, लिसनिंग टू हिम विशल ए हिंदी सॉन्ग। आई वंडर्ड इफ आई शुड टिकल हिम, बट बाय देन वी हैड रीच्ड द बेलागोला सर्कल, या मतलब वो बता रही है कि वह चाहती थी कि आई शुड टिकल हिम, बट बाय तब तक वह सोच रही थी कि उसे टिकल करूँ, लेकिन
तब तक वह बेलागोला सर्कल में पहुंच गई थी, इसलिए वहां नहीं कर सकती थी। When our scooter approached a house, the man standing outside smiled and opened the gate wide for us. जाती है तो एक आदमी गेट खोलता है हंसते हुए. I got down and walked up the path. The compound alone was bigger than our quarters. अब यहाँ पर उसके घर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इफ्तिखार का, कि उसका घर कितना बड़ा था मुजाहिद के घर के अकॉर्डिंग कंपेरेटिवली इफ्तिखार का घर काफ़ी बड़ा था. When I saw all the amenities there, I wondered whether we were in a garden or a park. उसके घर में इतनी खूबसूरत खूबसूरत सामान सब थे कि वो देख के काफ़ी हैरत पड़ जाती है जीनत की, कि वह ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़े महल में, गार्डन में या पार्क में आ चुकी है. मतलब सारी फैसिलिटी थी, घर के आसपास पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल थी. उसकी डिस्क्रिप्शन कर रही इफ्तिखार के घर की. On each side of the footpath stood a guava tree with iron ropes trying a switch to its thick branches. उसके बारे में बता रही है. Jasmine creepers and varieties of rose plants bloomed around them. I was dumb struck, यानी कि जीनत जो है वो कह रही I was dumb struck, यानी कि वो सोची नहीं थी कि वह इतनी अच्छी जगह पर जा रही है, या उसके हस्बैंड का किसी ऐसे इंसान से दोस्ती हो गई है जो इतना बड़ा, जिसका घर है, इतना खूबसूरत घर है, हर तरह की फैसिलिटी है, और वह घर गार्डन और पार्क जैसा दिख रहा हो. तो दैट्स वाई शी इज टेलिंग दैट आई वॉज डम स्ट्रक. वह एकदम डम स्ट्रक हो गई थी, काफ़ी हैरान सी हो गई थी. आई गेस्ड दैट द मैन स्टैंडिंग आउटसाइड मस्ट बी इफ्तिखार. जस्ट देन the lady of the house came out, greeted us with a polite salam and welcomed us to her home. अब उतने में कोई औरत घर से निकल के आती है इफ्तिखार के घर से, जो सलाम करती है, वेलकम करती है इन दोनों का. Within just half an hour, इफ्तिखार भाई and शाइस्ता भाभी were getting along with us so well. अब इतने में इफ्तिखार भाई आ जाते हैं, और शाइस्ता जो होती है वह इफ्तिखार की वाइफ होती है, राइट. तो वो दोनों आते हैं. I was so surprised seeing Mujahid mostly talking to Shaista Bhabhi. I thought I would tease him about it when we were alone. But when I realized that she was not only much older than Mujahid, but also seemed pure-hearted and without any ulterior motives, I didn't feel like making jokes about her. She was very simple and open-hearted soul and paraded all 6 of their children before us within a few minutes. यानी कि जो इफ्तिखार और शाइस्ता है, उसके 6 बच्चे का यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है. उनके 6 बच्चे भी थे जो वहाँ पर आ जाते हैं तुरंत ही. 3 daughters 3 sons, ये इफ्तिखार के होते हैं. 3 daughters 3 sons. Apart from the एल्डेस्ट, आसिफा जो होती है वह सबसे एल्डेस्ट डॉटर होती है इफ्तिखार की. सो द रेस्ट वेयर ऑल मंकीज, यानी आसिफा को छोड़कर जितने भी बच्चे थे वह मंकी की तरह ट्रीट कर रहे थे. यानी बच्चे तो होते ही नटखट, तो इसलिए राइटर ने मंकी का यूज़ किया है वर्ड का. सो दे वेयर ऑल मंकीज विदाउट टेल, बिना पूंछ वाले बंदर की तरह थे. सो राइटर इट्स लाइक कॉमिक सीन. एज इफ शी हैड रेड माई माइंड, शाइस्ता सेड व्हाट टू डू जीनत. अब यहाँ पर आपको राइटर ने पहली बार नरेटर का नाम डिस्क्राइब किया है, व्हाट टू डू जीनत. शाइस्ता बोलती है जीनत को, जो जीनत कौन है, मुजाहिद की वाइफ है, जो कि नरेटर है जीनत. व्हाट टू डू जीनत, बताओ क्या हाल है, क्या करूँ. आई डिडंट डू एनी प्लानिंग बिफोर आई इवन टर्न अराउंड टू सी व्हाट हैपेंड. यानी कि अब बताती है कि उसे कैसे 6 चिल्ड्रन हो गए, मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया, इस वजह से हमारे 6 बच्चे हो गए. एंड योर भाभी साहब came in the way, she said, cocking her head at Iftikhar. When I thought of getting an operation done, now I will certainly get it done after number 7. अब वो बोलती है शाइस्ता की कोई नहीं, अब मैं जो 7वां बच्चा होगा उसके बाद मैं ऑपरेशन करा लूँगी. There is no need, शाइस्ता, I am the only raising them. वाई आर यू वरीड, यानी कि वो उसको सेटिस्फाइड कराती है कि नहीं कोई बात नहीं है, हम हैं, हम लोग मिलकर, मतलब मैं हेल्प कर दूंगी. थैंक्स टू गॉड्स ग्रेस आई अर्न एनफ टू लुक आफ्टर ऑल ऑफ देम वेल. इफ्तिखार इंटरजेक्टेड. ओह, इट इज़ एनफ टू हैव सफिशिएंट अर्निंग. माई स्वीट आसिफा हैज़ हैड टू से गुड बाय टू हर स्टडीज़ बिकॉज ऑफ मी. डू यू नो हाउ मच डैट पेंस मी. यानी कि शाइस्ता बताती है कैसी उसकी जो फर्स्ट डॉटर आसिफा है वह स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन क्योंकि घर में उनके छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको हेल्प करने में वह रह जाती थी, इस वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पाई.
It is not like that I made her stop studying because girls do not need much education. A high school certificate is enough. There is no need for her to roam around in Mesuro for college. We can get her married off next year. अब इफ्तिखार जो फादर है आसिफा का, वो बताता है कि कोई ज़रूरत नहीं है लड़की को ज़्यादा पढ़ाई करने की, हाई स्कूल सर्टिफिकेट ही काफ़ी होती है और कोई ज़रूरत नहीं मैसूरों के कॉलेज में इधर उधर घूमने की, और मैं तो इसका शादी कर दूंगा नेक्स्ट ईयर ही, रिप्लाइड इफ्तिखार. Absolutely not. I got married when I was 20 years old. And I have become a mother of 6 children over the last 7 years. If you get my daughter married off this early, शाइस्ता trailed off. यानी शाइस्ता बताती है कि कैसे वह 20 ईयर्स में शादी की थी और कैसे उसके 6 चिल्ड्रन हो गए लास्ट 17 ईयर्स में. मुजाहिद and I listened to all this quietly. Asifa, the topic of this discussion, was standing by the window holding her brother. It agitated me. Come to think of it, Saista was more attractive than me. Iftikhar got up as if he had just thought of something and said, Oh Saista, you and Jinat Bhabi come out and sit here. अब वो जैसे कि सब बातचीत करते रहते हैं और बाहर बुलाता है. इफ्तिखार कहता है जीनत भाभी और तुम बाहर आ जाओ, I will pluck some flowers. यह इफ्तिखार कहता है. सो यह लोग बाहर आ जाते हैं अब. एंड आसिफा हैड गिवन हर ब्रदर अ बॉटल ऑफ मिल्क. जो आसिफा होती है इफ्तिखार की सबसे बड़ी बेटी, वह एक बॉटल मिल्क बच्चा को मतलब अपने भाई को पिलाने के लिए लाती है. सो शाइस्ता सैट ऑन वन स्विंग वाइल आई सैट ऑन द अनदर. या नैरेटर कहती है कि वह दोनों झूले पर बैठ जाते हैं. राइट. आई लाइक द स्विंग वेरी मच एंड बिगेन टू पुश इट हाइयर फास्टर. द joy of going and kicking the ground again. तो यहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है घर का. अब यहाँ पर फिर इफ्तिखार कुछ गुआवा वगैरह लाते हैं और ये लोग थोड़े से यहाँ पर क्या करते हैं, खाते पीते भी है यहाँ पर. अब शाइस्ता डिवाइडेड द जैस्मिन बर्ड्स शी हैड स्ट्रॉन्ग इनटू 2 equal pieces and gave me one. यानी शाइस्ता इसको देती है जीनत को, एंड शी लेफ्ट द अदर हैंडिंग डाउन फॉर द क्राउन ऑफ हेड लाइक अ रोप. सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कैसे ये लोग बैठे हुए हैं, इफ्तिखार, जीनत और शाइस्ता. कम हेयर आसिफा, आई कॉल्ड हर एंड ट्राई टू गिव हर माई शेयर ऑफ फ्लावर्स. शी डिडंट एक्सेप्ट देम बट आई फोर्स टू सिट टू नेक्स्ट टू एंड टाइड देम इन हर हेयर.